अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। We have reached today the summit of the start of Bhakti Yoga in the name Jnana Vijnana Yoga. We are going to complete this chapter today with our total understanding into it and shall make a background. Normally the style is the last stanza of each chapter links with the first stanza of the next chapter. So 7th chapter is also not an exception to it. And we will also see last 15 minutes the synopsis of the entire chapter, only in bullet points, what we have studied. So these were the signposts for, these can be signposts and the directives for all of us to study during our study hours as a part fulfillment of our process of this tapasya, penance, right? Now we need to understand and appreciate what all Krishna is trying to tell this Arjuna, because in the next chapter there will be Akshar Brahma Jnana, which is knowledge of the truth. There are 7 aspects about the truth. So truth is complete only if we are dealing with those 7 aspects. So we shall learn this systematically. In the last stanza, we were talking about Naham Prakasha. I'm going to read that for you and then make a background of the same. Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavritah Mudhoyam Nabhijanati Loko Mamajavayam. I spoke to you about Abuddhaya. Abuddhaya is the one who is not ready to understand. Not that he cannot understand. It's very clear. Not that he cannot understand, but he doesn't want to understand. He's Abuddhaya. Then I told you one story also. Now here he is talking Bhagavan about Mudhoyam Na Abhijanati. भगवान को एक रूप दे दिया है, बस वही है. भगवान को फ्रेम में अटका दिया, वही है. और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि भगवान किसी भी फ्रेम में अटक नहीं सकता. और नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया, ये योग माया से ढका हुआ. अब योग माया क्या है देखेंगे. योग माया से ढका हुआ. बहुत लोग पूछते हैं अरे योग माया क्या है. देखो, हमारी योग मतलब क्या, युज धातु से जो बना है, टू ज्वाइन. ठीक है. हमारी सारी शक्ति अगर माया के साथ जुड़ने में लगती है तो ये योग माया हो गया है. बहुत अलग मीनिंग बता रहा हूं. यू कैन गो थ्रू गूगल एंड फाइंड आउट. ये किसी महात्मा ने मुझे बताया था. महात्मा जी ने बताया कि योग माया, माया के साथ योग. एंड माया फॉर अस इज माय आइडेंटिफिकेशन विद बीएमआई. So my identification with my BMI is Yoga Maya, and because of this, I don't understand Avyaktam, Avyakta God, formless aspect, attributeless aspect, and then I'm caught in my Shaivites and Vaishnavites and
Kayastha, then Shudra, then Kshatriya, then Brahmin. All my divisions are because of my identification, because of my irrational identifications, because of my non-discriminative identifications with body, mind and intellect. देखो ये चीज इतनी जबरदस्त है. Constantly Bhagavan is telling us to de-identify intelligently, not intellectually. Constant. आज के जो 4-5 स्टैंजा बचे उसमें भी हम यही देखेंगे. आज बुद्ध पूर्णिमा है और बड़ी अजीब चीज है, हमें रामनवमी भी मिल गई इस अध्याय में, हमें हमारा नया साल मिल गया, युगादि, हनुमान जयंती मिल गई और बुद्ध पूर्णिमा भी. तो देखिए मैं ऐसे ही सोच रहा था, रामनवमी से शुरुआत हो गई, वनवास, अर्जुन विषाद योग, हमें कुछ न कुछ तकलीफें है शरीर मन और बुद्धि के स्तर पर, नहीं तो हम गीता की तरफ आकृष्ट नहीं हो गए. सर इसका मतलब ये है क्या कि जो आनंद में है वो गीता की तरफ आकृष्ट नहीं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है. आनंद में है तो वो गीता में ही है, वो गीता में ही स्थित है, और सुखी है तो नहीं आ सकता है. देखो सुख और आनंद में फर्क है, क्योंकि सुख का मतलब वही माया, लिप्त है माया में. फिर वो ऐसा कहेगा ए, जैसे ए और बी का प्रश्न किसी ने पूछा था पिछले वक्त, तो वो ए वाली बात हो जाएगी. जो बोलेगा तुम्हारी गीता में क्या लिखा है, तुम्हारे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, बोलना कुछ नहीं कह रहे, अहंकार है. तो ये जो माया है, ये जो सुख देती है इंद्रियजन्य सुख, वो गीता से दूर है. और ये जो माया और ये जो सुख इससे जो दूर है और दुख से भी ऊपर है, वो आनंद में है, तो वो गीता में स्थित है ना. तो मूढ़ कौन हो गया? मूढ़ वो है, भजगोविंदम में भी कहा है शंकराचार्य ने, कि जो नॉन इसेंशियल के साथ अनावश्यक जीवन की अनावश्यक चीजों में अपना समय बिताता है. आज एक स्टैंजा आएगा जिसमें कहा जाएगा कि गॉड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. देखो कोविड में भी गॉड इज नॉट अवर प्रायोरिटी, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी इज आवर प्रायोरिटी. मैंने ये लास्ट टाइम कहा था, किसी सज्जन ने पूछ लिया, मॉरल इमोरल की बात नहीं कर रहे हम अच्छे बुरे की भी बात नहीं कर रहे, न हमें हक है, हम सिर्फ कह रहे प्रायोरिटी क्या है, इतना तो कह सकते हैं. 4-5 लाइन जब इतनी लगी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो वो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी जो है उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है, ये तो सिद्ध हुआ ना. बस उतनी बातें कर रहे हैं, अच्छा बुरा नहीं बोल रहे उसको. अगर आप बोल रहे कि सर आप बोल रहे गॉड शुड बी प्रायोरिटी, दे आर डिस्कवरिंग देयर इन गॉड इन दैट, फाइन. फिर खुश क्यों नहीं है, फिर दर्द क्यों है? अगर हम हमारे ईश्वर के साथ है तो फिर दर्द कहाँ है? कहीं ना कहीं दर्द है, मतलब वहां हमारा ईश्वर नहीं है. बोलने के लिए ठीक है, सी गॉड इन एवरीथिंग, तो सी गॉड इन लिक्विड स्पिरिचुअलिटी. ये चीजें देखो बड़ी सोच की बात है, इसको सोचना है हमें. तो भगवान ने कहा है मूढ़, मूढ़ोयम न अभिजानाति लोको माम अजव्ययम, और मैं अव्यय हूँ, विनाश, मेरा नाश नहीं होता, मैं चिरंतन हूँ, सनातन हूँ, अविनाशी हूँ. ये जानने में ऐसे लोग असफल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो जानने में सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए कि वो जानना नहीं चाहते. यस, गॉड इज नॉट अवर प्रायोरिटी, गॉड इज लास्ट इन द क्यू.
But sir, since we don't understand what this all God about, obviously it becomes our last priority. That is why अभ्यासेन तु कौन्तेय, यही तो कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश भगवान इसीलिए दे रहे ताकि उसके बाद हमारी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी ईश्वर रहेगी। ये स्टैंजा पहले क्यों नहीं दे दिया? पहले अष्टधा प्रकृति बताई, माया बताई, मायाधिपति बताया, तो आज हम 15 मिनट आखिरी के देखने वाले हैं क्या क्या चीजें कवर हो गई बुलेट पॉइंट्स में। अच्छा हो जाएगा रिवीजन के लिए। देखो अचानक मुझे आज बुद्ध पूर्णिमा की याद दिलाई, मुझे पता नहीं था, कैलेंडर देखना भी नहीं हो रहा है। तो आज प्रेमा जी ने जैसे बात की थी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो अचानक अभी मुझे एक बचपन की स्टोरी याद आई। वो स्टोरी का मॉरल इंपॉर्टेंट है, सबने पढ़ी है स्टोरी, सबने 100 बार पढ़ी होंगी, फिर भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। एक तो भगवान बुद्ध के लिए भी हमारा आदर व्यक्त होगा, हमारा नमन, और ये स्टैंजाज में सब फिट होती है। एक भिखारी था और अपनी उपजीविका भीख मांग के करता था। बहुत सारी चीजें उसने इकट्ठा करके रखी थी, झाड़ के नीचे सोता था, लेकिन उसका खाना हर रोज गायब हो जाता था। एक दिन उसने पकड़ा तो देखा एक चूहा उसका खाना खाता है। सबको पता है ये कहानी, लेकिन आज आपको मैं आपका बचपन याद दिला रहा हूँ। चलो जाओ 40, 50, 60 साल पहले। और चूहा बोलता है, देखा चूहा बोलता है, इसका मैं बताऊंगा गर्भार्थ क्या है। और चूहा उसको कहता है आप सिर्फ 8 चीजें अपने पास रख सकते हो। अचानक याद आई मुझे कहानी है। और 9वीं चीज नहीं है, तो आपने इतनी चीजें इकट्ठा करी है, तो ये खाना आपके नसीब में नहीं होगा, वो मैं खा ले रहा हूँ। तो वो भिखारी बोलता है ऐसा क्यों? बोले वो नहीं मुझे पूछा, वो भगवान बुद्ध को पूछिए। ये भगवान बुद्ध के जमाने की कहानी, उस वक्त की बनी हुई, या चाहे उस वक्त 2500 साल पहले शायद चूहा बोलता भी होगा, पता नहीं, या चूहे की भाषा समझते हो। अभी चूहा ये मन है, तो कभी कभी मन बुद्धि एक ही है, अंदर और बाहर। जो ऑब्जेक्टिव है और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है वो बुद्धि है, और ऑब्जेक्टिव है जो माइंड है। ठीक है, मतलब आप बुद्धि भी समझ सकते हैं, वैसे भी बुद्धि देवता का वाहन है, मूषक। तो ये निकलता है भिखारी भगवान बुद्ध के यहाँ जाने के लिए। रास्ते में एकदम रात को थक जाता है, एक घर दिखता है, आश्रय लेता है, एक दंपति उसका स्वागत करती है और दिन भर उनके पास रहता है। बोलता है कहाँ जा रहे हो इतने रात में थके हुए, ये सब कहाँ निकले हो? बोले भगवान बुद्ध को मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पास 8 ही चीजें क्यों रहेगी और मेरा खाना सब वो खा लेता है चूहा, इसका कारण पूछने जा रहा हूँ। बोले तो बोलते आप जब जाओगे तो हमारा भी एक प्रश्न पूछना, हमारी बेटी बोलती नहीं है, 15 साल की है, तो ये क्या जिंदगी भर ऐसी ही गूंगी रहेगी? ये हमारा प्रश्न जरूर पूछना। तो ये भिखारी भी सज्जन था वैसा, उसने सोचा कि ठीक है मैं जा ही रहा हूँ, मैं भी पूछ लूंगा तुम्हारा क्वेश्चन, प्रश्न आते वक्त जवाब दे दूंगा। फिर दूसरे दिन चलते चलते और जाता है, बहुत पहाड़ी लगती है, पहाड़ी के वहाँ एक जादूगर मिलता है अपनी जादू की छड़ी के साथ। ये थक जाता है, वैसे भी और 4-5 पहाड़ी क्रॉस करनी होती है। जादूगर बोलता है और छड़ी पे बैठ जाओ। बैठता है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी को। बैठता है, जब वो छड़ी पे वो छड़ी उड़ती है वो आकाश में, तब जादूगर बोलता है कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान बुद्ध के साथ सवाल पूछने जा रहा हूँ, मेरा भी है और रास्ते में कोई मिले थे उनका भी एक सवाल है। तो जादूगर बोलता है हमारा भी सवाल पूछ लो, 100 साल से मैं इतने लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग प्राप्त। हेलो, is my voice reaching? Is my voice reaching you? Yes, it is reaching. Only Yes. somebody I think unmute किया है लगता है, इसके लिए उसका बात सुन रही थी। All right, I don't know. Yeah, it's okay. Sri Krishna.
श्री कृष्ण, ऑल राइट। तो चलो, तो उनको पूछ लीजिए मैं हम स्वर्ग में कब जाएंगे, तो ये भी पूछ लेते, ठीक है भाई हम स्वर्ग में कब जाएंगे ये भी पूछ लेंगे आपके लिए। फिर उतरते एक लास्ट आखिरी में एक नदी आती है, सबको कहानी पता है, मैं दोहरा रहा हूँ। और नदी आती है, नदी में भगवान बुद्ध के लिए हमारा सलाम। और जाते हैं नदी में, कछुआ दिखता है और कछुआ आता है, बोलता है मैं क्रॉस कराता हूँ आपको, लेकिन मैं इतने सालों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, आपके लैंग्वेज में उड़ना है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, इसे फंसा हूँ पानी में, क्या करूँ पूछ लेना। ठीक है बोले, आपका भी सवाल पूछ लेता हूँ। बड़ी मुश्किल से थका, हारा नहीं था। देखो हम थकते भी है और हारते भी है, कई बार थकने से पहले हार जाते हैं। ये हारा नहीं था, थका जरूर था। जाता है भगवान बुद्ध के पास, अंदर प्रवेश मिलता है, जिसके पास जिज्ञासा होती है वहां बुद्ध के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या बात है। भगवान बुद्ध बोलते हैं मैं 3 ही प्रश्न का जवाब दूंगा। ये मुश्किल में आता है, इसके 4 प्रश्न होते हैं खुद का पकड़ के, लेकिन ये सोचता है कि अरे वो बेचारी गूंगी रहेगी क्या जिंदगी भर, बहुत जरूरी है उनका प्रश्न पूछ ले। वो जादूगर भी इतने सालों से सेवा कर रहा है, लोगों को यहाँ से वहां लेके जा रहा है, उसको भी स्वर्ग की इच्छा है। और कछुए के भी बहुत तकलीफ है उसको, वो भी उड़ना चाहता है लेकिन पानी में फंसा है। इन तीनों के प्रश्न, मैं तो भिखारी हूँ, वैसे भी मुझे बाद में भीख ही मांगना है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि मेरी भीख, मैंने जो भिक्षा मांगी रहती है भीख, वो टिकती क्यों नहीं है, चूहा क्यों खा लेता है उसको, और मेरे पास 8 ही चीजें क्यों रहती है, ये पूछने के लिए मैं आया हूँ। मैं वैसे भी अपनी जिंदगी गुजार दूंगा, इनके 3 प्रश्न पूछ लेता है। 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान देते हैं। बोलते हैं कछुए ने जो अपने सर पे, अपने शरीर पे जो जड़ रखा है, जखीरा किया हुआ है, जमा है, देखो मित्रों, भगवान की ये कहानी अपने पूरे 8वें अध्याय का सार है। त्या कासवाच्या वरचं कवच जे असतं, अगर उसको निकाल दोगे तो ये उड़ पाएगा। ठीक है बोले, मैं उसको बता दूंगा। और जादूगर अपनी जादू की जो उसके पास लकड़ी है, उसको अगर नीचे जमीन पे डाल दिया तो वो भी स्वर्ग में चला जाएगा। माया, सॉर्सरीज ऑफ माया, द मैजिक ऑफ माया। ठीक है बोले, उनको भी जवाब दे दूंगा। और बोले हमसफर, कोई सच्चा हमसफर उस लड़की को मिल जाएगा तो वो भी बात करने लगेगी। बस 3 प्रश्न हो गए। इसका प्रश्न अधूरी, ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकता क्योंकि भगवान ने कहा था मैं 3 ही जवाब दूंगा। ये वापस है, कछुए को बोलता है शरीर पे धारण किया हुआ तेरा कवच निकाल के उखाड़ के फेंक दे, तू उड़ जाएगा। वो वैसा करता है, उस कवच के अंदर से बहुत सारे मोती मिलते हैं। वो ये कछुआ बोलता है आप ले लो, मुझे तो अभी सारा संसार मिल गया, मैं तो उड़ रहा हूँ, यहाँ सड़ रहा था, और उड़ के चले जाता है। जादूगर के पास आता है, जादूगर की छड़ी वैसे ही वो बोलता है नीचे कर, नीचे रख देता है, वो भी स्वर्ग में जाता है। और फिर इस दंपति के पास आता है, और जैसे ही उनके घर पहुंचता है, वो लड़की ऊपर से नीचे आती है और बोलती है वो यही है क्या जो हमारा प्रश्न पूछने गए थे बुद्ध के पास में। और ये माता पिता देखने लगते कि ये बोलने कैसी लगी, ये तो बोल नहीं रही थी, तो गूंगी थी। और फिर ये जवाब देता है कि जो जिससे बात करेगी पहले हम सफर, उससे शादी होगी, दोनों की शादी होती है और सुखी संसार, मोती भी मिल गए। न मागे त्याची रमा होय दासी। मला तर वाटतं जीवनात खरंच वाटतं खूपदा 18 साल तक जितनी शिक्षा हुई है उसके बाद सिर्फ कचरा ही हुआ है। ये कंडेमनेशन नहीं है। ये सारी कहानियां कब पता नहीं, 11-12, आपने भी 11-12 साल में पढ़ी होंगी ये सारी कहानियां। उतना मॉरल उस वक्त शक्तिशाली नहीं होगा हमारे जीवन में, क्योंकि अभी ये मॉरल हमारे जीवन का अनुभव है। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ आवर लिविंग, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। बट सर ये 8वें अध्याय 7वें अध्याय का सार कैसे बन जाएगी ये कहानी? ये तो ऐसे ही आपने आज बुद्ध पूर्णिमा करके बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये सार इसलिए है कि हम वो जादूगर की जो लकड़ी है उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो माया है, माया हमें उड़ा रही है। वो जब तक जमीन पर नहीं रख देंगे, हमारे लिए कोई, देखो, किसी स्वर्ग किसी मुक्ति की बात नहीं। स्वर्ग मतलब माई जॉयफुल हेवन इन माई
भूसम, माई स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल, यूबिक्विशियस। कॉमर्स में एक टर्म है यूबिक्विटीज। This joy is all powerful and from all sides. It's not conditional. लेकिन तब तक वो माया की जो लकड़ी है वो नीचे डालनी चाहिए आपको। और कछुआ जखीरा किया हुआ है। साईं बाबा बारंबार कहते हैं जखीरा मत करो, जियो और जीने दो। सब इकट्ठा किया है, आओ आओ आने दो, भरा भरा पड़ा हुआ है। तब तक वो कछुए जैसी बात होगी, पीठ पर इतना सारा हमने जखीरा किया है, हम उड़ नहीं पाएंगे। सर ये तो बात समझ में आ रही, लेकिन वो गूंगी की बात जरा कुछ जादू वाली लगती है, वो ठीक तरह से समझी नहीं है, उसमें समझना है ही नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमसफर, कोई सही हमसफर मिल जाए। सही हमसफर वही है जो वो माया की छड़ी नीचे रख देगा और सारा जखीरा किया हुआ बांट देगा लोगों को, अपने पास कुछ नहीं रखा, उखाड़ के फेंक देगा। वो सच्चा हमसफर हुआ, वो गीता का हमसफर है। और ऐसा गीता का हमसफर है तो वो गूंगी उससे शादी करेगी। मतलब ये है कि हम पहले गूंगे थे, अज्ञानी थे, वी वर इग्नोरेंट। बूढ़ा, मैं इसलिए कहानी बताई कि अभी ये बूढ़ा की बात हुई थी और इत्तेफाक से याद आई और भगवान बुद्ध का भी स्मरण हुआ। तो अपने आप वो ज्ञान हमारे अंदर बोलने लगेगा, वो ज्ञान हमसे शादी करेगा। हाँ, और फिर वी विल हैव ए जॉयफुल इटर्नल लाइफ। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हमने उस जादूगर की लकड़ी को पकड़ के रखा है। सॉर्सरीज ऑफ माया, मैजिक ऑफ माया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीएमआई, उसको इतना पकड़ के रखा है कि हम उस जादूगर की इच्छा के जैसे स्वर्ग में नहीं जा पाते। हमने इकट्ठा भी बहुत किया है सामान, और इसलिए हम कछुए के जैसे मुक्त नहीं हो पाते, और इसलिए हम सफर नहीं बन पाते, और इसलिए हम गूंगे के गूंगे रहते हैं, बोल नहीं पाते। सो न अभिजानाति का वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। अर्जुन, मैं स्वयं भगवान पूर्व काल में, वर्तमान, भविष्य में संपूर्ण घटना चक्र का साक्षी हो। तब ये समझा नहीं, घटना चक्र का साक्षी कैसे हो सकते? सी द वेकर इन मी एंड द ड्रीमर इन मी। आप जब नींद से उठते हैं, आप ये नहीं बोलते कि ड्रीम, आप बोलते हैं मैंने सपन देखा, आई वॉज ड्रीमिंग। दिखाओ कहा है वो आए? नो नो, आई वॉज ड्रीमिंग ड्यूरिंग माई ड्रीम। ओके, होल्ड ऑन, हु आर यू नाउ? ओ अबे, woke up soul to trouble others for the whole day? Who is that? अरे मैं हूं ना तुम्हारे सामने, कहाँ है? कहाँ दिखा रहा है तू? शरीर को दिखा रहा है। सी, दिस इज वेयर वी शुड स्टार्ट आवर हु एम आई जर्नी। भगवान बाबा ने भी हु एम आई के बारे में इतना कहा, द सिंपलेस्ट ऑफ द साधना। एक बार एक भक्त ने पूछा था, तो बाबा ने कहा हु एम आई इंक्वायरी इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल साधनास। लेकिन हम क्लिष्ट साधना करते रहते हैं, पूजा के माध्यम से जाना चाहते हैं। एक दिन रेड फ्लावर नहीं मिला तो परेशान हो जाते हैं, टीका नहीं लगाया तो परेशान हो जाता है। भगवत गीता में मुझे कहीं ही नहीं दिखा कि टीका कहाँ लगाना है, क्या करना है। उसकी अपनी अहमियत है रिचुअल्स के हिसाब से, लेकिन हम फंसे पड़े हुए हैं वहां। देखो, ये इतनी अर्थपूर्ण बात है कि मेरे जीवन में प्रायोरिटी जो डिसाइड करनी है वो मुझे करनी है। हमारे जीवन में मित्रों, प्रायः दूसरे लोग हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। होल्ड ऑन टू दिस ट्रूथ, टेक ए पॉज, सोचो, गंभीरता से सोचो इसे।
आपको इतने सारे एक्सरसाइज बताए, आप रात को सोचना, आपको देखेगा कि आपकी जिंदगी बचपन से अलग अलग लोगों ने घसीट के लेके गई है। हाँ, हाउ डू यू से सो? यस, इट्स अ ट्रुथ। फिर उसको अच्छे नाम मत दो। जैसे किसी हमारे भक्त ने लास्ट टाइम गीता के गीता सत्संग के बाद पूछा था, एक प्रेमी ने, कि द रिलेशनशिप, क्लोजर रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, relationship is relationship, there is nothing like close and far। वो तो फायदे मुनाफे की बात होगी। हो सकता है किसी ने जिंदगी भर हमें सहारा दिया है, तो we'll say closer relationship, there's nothing like close and far, relationship is of relation, that's it। तो जीवन में हमें, आप जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे रात को, आपको आज प्लीज करिए एक्सरसाइज बचपन से। पहले हो सकता है आपके माँ बाप ने आपको कंट्रोल किया, उसमें से भी कोई सख्त होंगे, तो आपको देखा, आप देखे होंगे बहुत से लोग बोलते हैं हम पिताजी से डरते थे और एक कोने में चुपचाप बैठते थे। कुछ लोग अभी आजकल उल्टा बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया, हमारी जिंदगी कोई दूसरा घसीट के लेके जा रहा है। त्या द्रौपदी सारखा ओढून घसीटून चाललोय, कारण आपण कृष्णाला न न आवाज देता आम्ही स्वतःच्या सामर्थ्याने त्याच्याशी लढतोय। ये हमारे 7वें अध्याय का बहुत बड़ा जिस्ट है कि कृष्ण को हमारे समीप रखते हुए बोलो, धाव धाव रे कृष्णा, धाव धाव रे कृष्णा, अभयम कृष्णा, अभयम कृष्णा। और देखो क्या चमत्कार होते हैं। लेकिन ये करने में हम भूलते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ईश्वर नहीं है। भगवान आगे बोलने वाले हैं, मैं सिर्फ आई एम ओनली क्रिएटिंग ए बैकग्राउंड। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जीवन अपनी धारा में, जीवन का गणित अपनी धारा में बहता है। चाहे तू लाख कर ले कोशिश, ये 1.5-2 महीने का समय तो इतनी आंखें अंतर चक्षु खुलने को साधना हुई है, या इतनी हंसी आ रही है। जो बोलते थे वक्त नहीं है, उनके पास वक्त ही वक्त है। अच्छा है माया काफी जमा के रखी है, तो खाने पीने के समस्याएं नहीं है। लेकिन आज लाखों लोग, मैं आंखों से देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, भीख मांगने की नौबत आ रही, जिन्होंने माया जमाई नहीं। फिर आप ये मत सवाल पूछिए सर माया जमानी चाहिए, फिर आप क्यों बोलते हैं माया नहीं जमानी चाहिए? अगर सभी ने माया नहीं जमाने की बात की तो वो सतयुग की बात है। मैं बार बार कहता हूं ये। लेकिन 10 लोगों ने जमाई तो 11वें ने भी थोड़ी जमानी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज हाउ वी हैड ओनली 2 क्लासेस, कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। ये 2 ही क्लास थे, बीच का क्लास कोई नहीं होता है। वन हु रूल्स एंड द अदर हु गेट्स रूल्ड, दैट्स इट। बी प्योर और रिमेन इम्प्योर, डोंट से आई एम हाफ प्योर एंड हाफ इम्प्योर। ये बीच का क्लास ही नहीं होता है दोस्तों। यू कांट से I am moving towards purity slowly in my life. So many people tell me this and say, sir, what should we do to get the speedy? I said, there cannot be speedy recovery. Even if we have one impure dhabba in the form of the crystallized vasanas, it can proliferate, it can bloom up, it can blow up, it can get inflated और हमको कंज्यूम कर सकती है, हमको खा सकती है पूरी तरह से। इसलिए देयर इज नथिंग लाइक हाफ प्यूरिटी, सम परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी एंड आई एम नाउ नो dot of impurity, we are impure in terms of vasana. Again friends, don't ask me questions. I am not talking about good or bad. Sometimes impurity also we enjoy. Please contemplate on my statement. Sometimes impurities also we enjoy. Don't answer, but get the validity of my statement. Yes, तमस है तो वो आनंद आने ही वाला है, रजस है तो वो आनंद आने ही वाला है, सात्विक है तो वो आनंद आने वाला है। डर्ट इज डर्ट, देयर इज नो क्वांटिफिकेशन ऑफ ए डर्ट।
Swami used to always say, dirt is dirt, that is all. And hence they say, Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhavishyani च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, परंतु मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ, तीन कालों को मैं काल हूँ, मैं तीनों को जानता हूँ का मतलब ही ये है, आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द ड्रीम एक्सपीरियंस, वो वहां भी मैं हूँ, जगने के बाद भी मैं हूँ, और ये जगने वाले को जगाने वाला भी मैं हूँ. आई हैव बीन टेलिंग यू, वी हैव टू वेक अप फ्रॉम द वेकिंग स्टेज. First, we have to wake up from the dream stage, then wake up, and then wake up from the waking stage, Turiya. And Turiya is not fourth stage. बहुत लोग पूछते हैं, सर, is it a fourth stage? There is nothing like fourth stage. ये साक्षी भाव कोई स्टेज नहीं है. अहम आवाम वयम प्रथमा माम आवाम नौ अस्मान न द्वितीय मया आवाभ्याम अस्माभि. नो 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 नो. साक्षी है, वो स्थिति नहीं है, वो कोई काल नहीं है, वो स्थिति है. और वो स्थिति होने का मतलब ही ये है कि वो कोई चौथी स्टेज नहीं है. इट्स नॉट अ स्टेज, बिकॉज स्टेज हैज डायमेंशन एंड विटनेस हैज नो डायमेंशंस. इट इज डायमेंशनलेस. So to get into that dimensionless, we have to first wake up from our dreams and then waking up from the woken up stage. लेकिन सर ये बाधाएं बहुत, हाँ, बाधाओं की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. लेकिन काश इच्छा और द्वेष, इसे हमें सुनना पड़ेगा ठीक तरह से. ये दो जो कार्सिनोजेंस है, वी आर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड बाय दीज टू कार्सिनोजेंस. दे आर कैंसरस. एक तो हम डिजायर के पीछे दौड़ते हैं, या फिर डिजायर हमारे पीछे दौड़ती है. दो ही प्रकार हो सकते. सो आइदर वी हैव पुल्स ऑफ डिजायर्स और वी हैव ए पुश फ्रॉम आवर डिजायर. वो दुकान में मैं जब पुल और पुश जाता हूँ ना, आपने देखा होगा, बराबर उल्टा होता है. वहां पुल के जगह हम पुश कर देते, लिखा हुआ होता है वहां, है ना, सबका अनुभव है ना. और पुश के जगह पुल हो जाता है, और फिर हम करते हैं. अब थोड़ी शर्म भी आती है, चार लोग देखते हैं, फिर वो दुकानदार आके बोलता है, सर बाहर बाहर ढकेलो, दरवाजा बाहर खुलता है. अरे हमारे सारे दरवाजे बाहर ही खुल रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम हो रही. दरवाजा अंदर खुलना चाहिए. पुश और पुल में आप देखो, 100 में से देखो प्रयोग करके 90 लोग लिखने के बावजूद उल्टा करते हैं. माया है, पुल और पुश में भी माया है. अबुद्धया, बेवकूफ बोला है भगवान ने. Not that I do not know. The tragedy is I do not want to know. Not that I do not know that God should be my first priority in life. But I want to keep my God last in the queue, decidedly. I repeat, nobody can say, मैं बद्ध जीव हूं. बहुत लोग कहते रहते हैं. Is the defeat of Bhakti Yoga. It is demeaning of Bhakti Yoga. Because my investment is in non-essentials. Friends, we have to disinvest ourselves from our non-essentials and start reinvesting in our essentials. But don't give gradations. Be happy. नहीं तो जर्नी तक पूरा खराब जाएगा. I am trying. अरे ट्राइंग तो फिर खुश क्यों नहीं है, रोते हुए क्यों बोलते हैं? कोई भी ट्राइंग वाला आदमी